हेलो टू ऑल द यूपीएससी एस्पायरेंट्स। आप सब ने कल प्रीलिम्स का एग्जाम दिया होगा एंड फर्स्टली आई वुड लाइक टू से वेल डन टू ऑल ऑफ यू। आप सब ने एक साल से या फिर उससे भी ज्यादा टाइम से तैयारी कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सो इसीलिए फॉर वर्किंग सो हार्ड आई वुड लाइक टू से वेल डन। सेकेंडली, बिकॉज अभी एग्जाम को एक दिन हो चुका है, आई एम श्योर आप सब अभी अपने आंसर कीज के साथ मैच कर रहे होंगे। आप ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपका एग्जैक्टली मार्क कितना आएगा एंड विल यू बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ, and more importantly what will be the cutoff. These are the questions which are quite natural in the aspirant's mind after the exam. So हम भी आज एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेस्ड ऑन द एग्जाम। लेकिन उससे पहले एग्जाम के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कल का जो पेपर था, there is a wide consensus regarding it that it was probably the toughest prelims paper in the recent past. Why? Not just because of the tough questions, but more importantly because of the tricky options. इससे पहले जो ट्रेंड था, एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी और एस्पायरेंट्स भी बहुत डिपेंड करते थे। यानी बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर पहले 4 स्टेटमेंट्स थे, आपको डेफिनेटली पता है कि एक ट्रू है और ये भी पता है कि डेफिनेटली एक फॉल्स है, तब विदाउट नोइंग द थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बेस्ड ऑन द ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते थे। पर अभी ये जो कल का पेपर है उसमें आप वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसमें ऐसे नहीं ऑप्शंस आ रहे थे कि 1 and 2 ओनली, 1 2 3, 2 and 3 ओनली। वैसे एलिमिनेशन का अपॉर्चुनिटी ही एलिमिनेट कर दिया है यूपीएससी ने। In this kind of pattern, you have to know in detail regarding all these statements. So that is what makes the exam so tough. And because the exam has been so tough, the cutoff is definitely going to be lower than the previous year. The question is how low? Here we are going to make a very bold prediction, but I feel it is going to be very accurate, which only time can tell after 1 year's time, right? क्योंकि तभी ही यूपीएससी अपना कट ऑफ डिक्लेयर करती है ऑफिशियली। So we are making this prediction कि the cutoff can be anywhere between 78 to 82. To quote a figure, we can tell the cutoff will be around 80, right? So if you are around this number, when I am saying around this number, आप कर लो ±5, ठीक है? Anything above 75 is highly probable to clear the prelims. Okay? Now more importantly, अभी क्या? The question is what next? Prelims तो हो गया, अभी आगे है mains exam. So as I said, if you are scoring in the 70s, especially above 75, या फिर जब मैं 75 बोल रहा हूँ, then 74.5 नहीं होगा और 75 हो जाएगा, no one can say that, right? So if your mark is in the 70s for general category and accordingly for other categories also, subsequently, correspondingly, then it is very important कि आप आज ही से आपका मेंस प्रिपरेशन शुरू कर दो, because ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। The mains exam is going to start about September 15th से, so you have roughly 70 to 75 days. So ये 70 दिन, जैसे कि चक दे इंडिया में डायलॉग दिया गया था ना, it is extremely crucial. How you spend it is what is going to decide your future. और ये 70 days 50 हो जाएगा अगर आप वेट करोगे यूपीएससी के प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने का वेट मत करो, अभी से ही शुरू कीजिए प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन इन द सेंस मेंस क्या है, you have to be a absolute pro in answer writing. You need to know what is going to fetch you more marks than your competitors in both GS and optional. इसीलिए we are starting our mains holistic mains program टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज यानी जीएस वाइज एंड ऑप्शनल के टेस्ट मिलेंगे एंड एवरी टेस्ट का एनालिसिस होगा और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी मिलेगा। वी विल guide you to exactly how you can improve your marks, how you can from getting 100 out of 250 to 110, 115, 120 out of 250, and those 10 and 15 marks are going to decide whether your name will be in the merit list or not. मेंस के लिए प्रिपरेशन करना और भी इंपॉर्टेंट इसीलिए है ये साल, especially in these years, because as you have experienced, prelims is getting tougher by each year.
ओके, सो टू क्लियर द प्रीलिम्स आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप सब भी मानोगे यू नीड दैट एलिमेंट ऑफ लक। जो तुक्केबाजी थोड़ा होता है 5 to 10 क्वेश्चंस का, उसमें एक एक मार्क से डिफरेंस हो जाता है, सो यू नीड दैट एलिमेंट ऑफ लक। सो इफ यू आर लकी इनफ टू क्लियर द प्रीलिम्स दिस ईयर, मेक श्योर कि यही साल आप एग्जाम क्लियर करो, बिकॉज अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप चलोगे कि ये साल मैं प्रीलिम्स कर लेता हूं, अगले साल मेंस कर लूंगा, क्या पता अगले साल द एलिमेंट ऑफ लक, दैट फैक्टर विल बी supporting you or not. No one has control over luck, right? So if you are lucky enough, make it count. हमको कांटेक्ट करने के लिए you have all the contact numbers that are being displayed below. You can call anytime and the earlier the better. Thank you very much.